Chemical properties of triacylglycerol. In the last module, we have discussed the physical properties. In this module, we will discuss the chemical properties, which will continue in one or two next modules. So the hydrolysis is the first chemical properties. The fats may be hydrolyzed with superheated steam or by the acids or alkalis by the specific fat splitting enzymes like lipases to free fatty acids and glycerol. तो ट्राइसाइलग्लिसरॉल का हमने इनिशियली स्ट्रक्चर देखा था कि वो किस तरह बनता है कि ये हाइड्रोलिसिस हो रही है, इसमें वाटर ऐड हो रहा है. जब इनिशियली फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल आपस में मिलते हैं तो वहाँ डिहाइड्रेशन होती है, वाटर उसमें से निकल जाता है. इसी तरह जिस वक्त हम इसको दोबारा तोड़ते हैं तो इसके अंदर जो है ना वाटर जो है ना इसमें से निकलता है, तो हाइड्रोलिसिस होता है. इसके अंदर इसमें वाटर ऐड होता है जिसकी वजह से जो है ना ग्लिसरॉल अलग हो जाता है और फैटी एसिड्स अलग हो जाते हैं. और ये सुपर हीटेड हीट से भी हो सकता है, alkalis acids and lipase, which are the enzymes, and it is converted ultimately again into fatty acids and the glycerol. We can see in this slide here that this is the structure of triacylglycerol. Triacylglycerol में हमने कहा था कि एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है और उसके साथ एक, दो और तीन जो है वो तीन जो है फैटी एसिड्स लगे हुए हैं. ये फैटी एसिड्स हमने इनिशियली पढ़ा था कि एक तरह के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं. इसके ऊपर लाइपेज और एसिड एक्ट करता है और इसमें जो है ना वो वाटर ऐड हो जाता है. उसकी वजह से ये अल्टीमेटली यहाँ पे वी कैन सी हियर कि यहाँ ये ग्रुप अगर यहाँ से निकल जाए और यहाँ एक हाइड्रोजन और एक OH ऐड हो जाए, ये वाटर इसके ऊपर ऐड हो गया. So this is again converted into glycerol and free fatty acids इसमें से अलग हो जाते हैं. This is another diagram which also shows the hydrolysis of triolene. Triolene जो है simpler जो है वो triacylglycerol है. इसके अंदर we can see this is the structure of a glycerol which is having attached three molecules of fatty acids and all three are ओलिक एसिड, ट्राइओलिन, इसीलिए तीन ओलिक एसिड हैं, इसलिए ट्राइओलिन कहते हैं. ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस जब इसके अंदर हम वाटर ऐड करते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं हाइड्रोलिसिस हो रहा है और वाटर ऐड हो रहा है, उसकी वजह से जो है ये हाइड्रोलिसिस है, यहाँ वाटर ऐड हो गया. उसकी वजह से ये अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल यहाँ बन गया और तीन जो है वो ओलिक एसिड मॉलिक्यूल्स यहाँ से, एक यहाँ पे था, दूसरा ये था और तीसरा ये था. क्योंकि हमने बोला है कि ये ट्राइओलिन है, इसके अंदर तीन ओलिक एसिड हैं, ये तीन ओलिक एसिड मॉलिक्यूल्स अलग हो गए. सो दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइसाइक्लिसरॉल व्हिच इज नोन एज हाइड्रोलिसिस. Next is the saponification. Hydrolysis of a fat by an alkali is called the saponification. हमने पिछली उसमें स्लाइड में देखा कि जो है ना हाइड्रोलिसिस अल्कली से भी हो सकता है, एसिड से भी हो सकता है, लाइपेज से भी हो सकता है और सुपर हीटेड स्टीम से भी हो सकता है. तो अगर ये हाइड्रोलिसिस हो बाय द means of alkali, it is known as saponification. The resultant products are glycerol and the alkali salts of the fatty acids which are called soaps. Saponifications इसीलिए बोलते हैं कि जब अल्कली और फैट आपस में मिल जाते हैं तो ये सोप बन जाता है जिसको हम रूटीन में यूज़ करते हैं. these soaps are also used हमारी रूटीन की वॉशिंग में, हैंड वॉशिंग में, फेस वॉशिंग में एंड the detergents and the different soaps we are using for the clothes and other washing materials. This is the diagrammatic presentation of the formation of from triglyceride to a sodium palmitate. This is the molecule of triglyceride having three palmitic acids, 1, 2, 3 fatty acids which are palmitic acid, and three sodium hydroxide molecules are added. This is an alkali which is sodium hydroxide, and three molecules are required for the addition of each molecule of this fatty acid, which is in this case is palmitate. So ultimately glycerol is removed and this
3 molecules are attached with the sodium from this sodium hydroxide और ultimately ये sodium palmitate बन जाता है which is known as the soap or this is the process of sponification. The number of milligrams of sodium hydroxide or potassium hydroxide required to sponify the free and combined fatty acids in 1 gram of a given fat is called the sponification number. Sponification number क्या है कि जितने मॉलिक्यूल्स जितने मिलीग्राम्स चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या से किसी भी अल्कली के टू फॉर 1 gram to sponify the 1 gram of a fatty acid that is known as the sponification number. मिलीग्राम में ये होगा लेकिन इसको ये मिलीग्राम में यूज होगा लेकिन इसको नंबर में डिनोट करेंगे. So this is the sponification number and we can see here कि यहाँ पे we can see कि ये सोडियम जिस वक्त अगर हमने कहा कि जिस वक्त ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को या फैट्स को हम वाटर में डालते हैं तो ये हाइड्रोफिलिक एरिया जो है ये अंदर चला जाता है, ये बाहर आ जाता है. हाइड्रोफिलिक एरिया जो है ये बाहर आ जाता है, हाइड्रोफोबिक अल्टीमेटली अंदर चला जाता है. सो दिस टाइप ऑफ माइसिल्स आर फॉर्म्ड when we add the sodium hydroxide. This sodium hydroxide is attached on the hydroxyl group and so these triacyl glycerols is converted into this soap. This is a soap which is written here and the glycerol is separated. So this is the process of sponification or formation of soap. The amount of alkali needed to sponify a given quantity of fat will depend upon the carboxyl number of carboxyl group present. क्योंकि हमने देखा पिछली डायग्राम में कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ने उसके कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच होना है क्योंकि फैटी एसिड के साथ तो अटैच हो नहीं सकता क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक और अंदर गया हुआ है. हाइड्रोफिलिक एरिया पे अटैच होना है तो जितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा होंगे उतना इसका स्पोनिफिकेशन नंबर ज़्यादा होगा. दस फैट कंटेनिंग शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स will have more carboxyl group per gram than longer chain fatty acids and this will take up more alkali. जितने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे उसके उतना ही स्पोनिफिकेशन नंबर ज़्यादा होगा किसी भी फैट का एंड हेंस विल हैव हायर स्पोनिफिकेशन नंबर. अगर लॉन्गर चेन फैटी एसिड्स हैं तो एक लॉन्गर चेन जिसका पामेटिक एसिड है या ओलिक एसिड है उसके 18 के ऊपर एक लगा हुआ है जबकि ल्यूरिक एसिड के 12 के ऊपर जो है ना कार्बन के ऊपर एक कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है. तो ल्यूरिक एसिड के अंदर जो है उसका स्पोनिफिकेशन नंबर हायर होगा एज कंपेयर टू पामेटिक एसिड. दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन or the tabulated form in which we can see here the sponification number. Beef का tallow जो routine में use होता है, the tallow is the fat obtained from the cattle used in the soap industry. इसका sponification number है around 194 to 200. जबकि lard का भी similar है, milk का ही है लेकिन peanut oils का we can see that it is around 186 to 194. The reason is that beef tallow is having longer chain fatty acids while peanut oil is having smaller chain fatty acids. So इनका sponification number accordingly different है. Butter containing a larger proportion of short chain fatty acids such as butyric acid जिसमें C4 है and caproic acid which is having C6 और कार्बन 6 कार्बन है इसमें. Therefore, it has relatively higher sponification number from 220 to 230. In contrast, olive oil, which contains oleic acid, which is having carbon of 18 carbon chain, which is a longer fatty acids as compared to butyric acid. तो हर butyric acid के साथ एक एक जो है ना कार्बोक्सिल लगा हुआ है हर 4 के साथ, यहाँ हर 18 कार्बन के साथ एक कार्बोक्सिल ग्रुप है. So it has a sponification number of 95, 195 or less. तो जितना छोटा होगा मॉलिक्यूल या जितना छोटी चेन हाइड्रोकार्बन चेन जितनी छोटी होगी जैसे ब्यूटेरिक एसिड की है जिसमें
हाइड्रोकार्बन चेन 4 की है, हर हाइड्रोकार्बन चेन के ऊपर एक कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। इसी तरह जितनी जो है बड़ी चेन हो गई, जिस तरह इसमें हमने देखा ओलिक एसिड में, ओलिव ऑयल में, उसका स्पोनिफिकेशन नंबर जो है वो कम होगा। सो दिस इज द डिटेल ऑफ द स्पोनिफिकेशन नंबर।